लाइट, कैमरा, एक्शन, ये वो 3 वर्ड्स हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री की जान है। और हर वो इंसान जो अपना एक मकाम इस इंडस्ट्री में बनाना चाहता है, वो ये शब्द ज़रूर सुनना चाहता है। लेकिन इन शब्दों से पहले एक और शब्द बहुत ज़रूरी है, वो है वाव। ये शब्द कैसे सुनने को मिलता है? ये शब्द आप पे छुपे हुए उस एक्स फैक्टर के बारे में दर्शाता है जो बाहर निकाल के लाते हैं हमारे फोटोग्राफर। Darshan Dixit, an international fashion photographer who has redefined glamour and style. A photographer who works with international brands which has a desi heart who loves life and energy. Photography is not just his profession, it is his love affair with lights. The Smart Lid is a search of this restless photographer who is in search of a photo of his lifetime. दोस्तों, एज ऑलवेज आज हमारे साथ हैं हमारे यूनिक फोटोग्राफर दर्शन दीक्षित। लेकिन उनसे बात करने से पहले आइए मिलते हैं हमारी मॉडल सारिका से। Hi, my name is Sri and I'm a model. जैसे कि बचपन में सबके ख्वाब रहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर बनना, वैसे मेरा एक ख्वाब था कि मैं मॉडल बनूं। एक ग्लैमर वर्ल्ड मेरे को हमेशा फैंटेसाइज करता था, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं था, कैसे जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन केबल चैनल में कॉल करके मेरे को पता चला कि वहाँ पे ऑडिशंस चालू है। मैं गई, ऑडिशन दिया एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। सो दर्शन, अब बताइए सारिका के बारे में। वो आपको एज अ मॉडल, एज अ पर्सन कैसी लगी? उनकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट किए और किस तरीके से आपने उन पे वर्क करने की सोची? If we talk about Sarika, I would say Sarika एक colorful model है, and if I have to define her, I would say that she's the most colorful model You've come across? in the Smart Click, at least, that I've come across. Wow. When I say colorful, she has again got a lot of sides of her personality, and again she's a good dancer, and she knows her body very well. So I guess that's very important. That's the most important for a model to understand herself and understand her body. So it was fun to shoot her. Wow. And हमें ये लगता है कि इनका जो पहला लुक था वो बहुत again I think traditional look था, ethnic. It was a mixture. It was not an Indian traditional look. It was an Egyptian look. Wow. So ना this is a great thing. मतलब उनको देख के आपके दिमाग में इजिप्शियन लुक देने का कैसे विचार आया? I thought that she would, really fit into their culture because they have really rich and colorful culture. Right, after right. India, if I could see a country which So that would be really Egypt. attracts me, that's Egypt. जब भी हम इजिप्ट की बात करते हैं तो हमारे मन में ममीज और वो सारा सिनेरियो एकदम डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है, पिरामिड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो आपने भी वही चीज़ें दिमाग में रखकर ये लुक देना चाहा या इसमें अगेन थोड़ा सा डिफरेंस था एज ऑलवेज? हम लोग ने उसे एक ब्रिक्स जहाँ पे बनते हैं, ईट भट्टी जो होती है, ईट भट्टी के यहाँ पे हमने उसे पोज करने बोला था, एंड शी स्टार्टेड मूविंग हर बॉडी. Now the funny part is this particular location was very close from the road, yeah, and we never noticed that she was posing. I was clicking, and the entire team was shooting, and the people started noticing her, and they started noticing her so much कि वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम हो गया. क्या बात कर रहे हैं? She's already a star. She's a showstopper. She's a showstopper. Yeah, she's a showstopper. And the best part for any actor, any dancer or any model is that you're performing and people are there to see you. See. Yeah, so that's the biggest achievement. And the bigger achievement than this achievement is to understand your own potential. Very true. To understand that you are a showstopper, and so many people are just stopping there and spending their time to see you. It means that you have something in you. राइट, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि ऐसी क्या बात थी भाई।
दर्शन, it was again a very very beautiful experience. आपका has to be. आपकी मेकिंग देखी इस इजिप्शियन लुक में, एंड जो आपने बातें बताई उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें देखी हमने इस मेकिंग में. Right. मतलब इतने रगेड सरफेस से आप लोग जा रहे थे, इतना हार्ड स्टोन्स. आपने मॉडल्स को बहुत पेन देते हो यार, हाँ, बहुत उनसे टफ काम कराते हो. बट देन आई ऑल्सो सॉ वन थिंग कि आप उनका हाथ पकड़ के उनको तरीके से, उनका ध्यान से वो पाथ क्रॉस करवा रहे थे. तो दैट्स रियली अमेजिंग. आई मीन नो फोटोग्राफर इज बॉदर्ड, एंड दैट शोड अ वेरी केयरिंग एटीट्यूड ऑफ योर्स टुवर्ड्स योर मॉडल. Yeah, people trust us and come all the way from different parts of India, different parts of world. So I really care for them. In fact, we all care for them. So Darshan, I must say कि आप यूनिक और क्रिएटिव तो हैं ही, बट यू वेरी स्पॉन्टेनियस ऑल्सो. कि एकदम से आप प्रॉप देखते हैं या कोई लोकेशन देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं और आपको एकदम क्लिक कर जाता है कि इस मॉडल के साथ ये चीज़ सूट करेगी, एंड व्हाई नॉट ट्राई दैट. If she says so, yeah. Yeah, we all, and I'm sure हमारे व्यूअर्स भी ये फील करते होंगे आपकी बातें सुनकर. Okay. सो व्यूअर्स, देखा आपने, एक फोटोग्राफर क्रिएटिव हो, यूनिक हो, मल्टी टैलेंटेड हो, पर साथ में केयरिंग भी बहुत है. ऐसे फोटोग्राफर्स आसानी से नहीं मिलते, पर मिलेंगे कहाँ? डी स्मार्ट क्लिक पर. उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, अपने टैलेंट को आजमाना पड़ेगा. दर्शन, इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे लगता है ये फ़ोटोशूट बहुत ज़्यादा ही स्पेशल रही होगी, जहाँ अ मॉडल इन मेकिंग अभी से ही स्टार बन गई. मुझे तो इसका रिजल्ट ज़रूर देखना है. एंड व्यूअर्स, आई एम श्योर मुझे देखना है तो आपको तो देखना ही होगा, क्योंकि आपको भी तो इसी लाइन में जाना है, आपको भी तो यही चीज़ परस्यू करनी है. तो चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट इट्स रिजल्ट. इतना सुंदर एक्सपीरियंस, आई विश आई कुड हैव बीन देयर. मतलब कैसे आपको ये सब आइडियाज़ आते हैं और कितनी ब्यूटीफुली आपने ये सारी चीज़ें पोर्ट्रेट करी हैं. Thank you. और दर्शन, हमने देखा एक और लुक आपने दिया सारिका को, जिसमें बिकनी शूट था आई गेस, वो स्विमिंग Right. पूल में. Right. या एंड उसकी लाइटिंग इफेक्ट्स वो सब भी बहुत यूनिक लग रही थी. तो या, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? कैसा एक्सपीरियंस रहा वो स्विमिंग पूल में शूट का? उसके स्किन टोन के हिसाब से आई चूज सिल्वर बिकनी फॉर हर. ओके. एंड हम लोग ने शूट स्टार्ट की. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक मॉडल हो तो हम आपको क्लैम शेल लाइट देते हैं, मॉडल लाइटिंग देते हैं, एंड द लाइट कम्स ऑन यू डायरेक्टली. द लाइट कम्स ऑन यू directly in most of the lighting situations that we have. Right. But over here in swimming pool, we asked her to pose near the wall. There was a wall over there, and instead of because it was night, instead of having lights on her, हम लोगों ने lights bounce किए थे पानी में, and bounce करके वो जो reflect हुई light उसके ऊपर जा रही थी. Oh my God. उस पे हम लोगों ने shoot किया. First it diffused the light. जो हार्श लाइट होती है उसे डिफ्यूज हो गई, एंड एक वाटर का फील आ रहा था उसके ऊपर, विच वाज लुकिंग फैबुलस. Wow. Yeah. And again, it's a very good concept. Yeah, it's a wonderful concept. Yeah. But I was having difficulties in shooting her because of the distance first, and second she was sitting, so I was not getting proper shots. So I had to get down in the swimming pool, and trust me, the water was very cold. Is it? But then, yeah, it was fun, and I was getting good low-angle shots because I was down in the pool and she was posing near the wall. देखा आपने, शायद ही कोई ऐसा फोटोग्राफर होगा जो इतनी मेहनत करता हो, इतने डेडिकेशन के साथ इतनी नई चीज़ें हमारे सामने लेकर आता हो, और नेचर का इतना प्रॉपर बेहतरीन यूटिलाइजेशन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा. पर आपको अगर ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, यहाँ तो आना ही पड़ेगा. डी स्मार्ट क्लिक में नहीं आओगे, सो यू विल मिस ऑल द फन. थैंक यू सो मच दर्शन वंस अगेन कि आप यहाँ पर आए, और इस बार तो और भी ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस आपने बताए. पर ये फ़ोटोशूट जो स्विमिंग पूल में हुई है, मेरे को तो बहुत मन है देखने का. बट अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देखेंगे. थैंक यू सो मच. सी यू अगेन. थैंक यू. बाय. बाय. दोस्तों, कभी कभी दिमाग की सोच दिल की इच्छाओं को दबा देती है,
तो सोचिए, पर ज़्यादा भी मत सोचिए। हम हैं ना, और बिल्कुल आपका साथ निभाएंगे। बस थोड़ा इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी के लिए अलविदा। दोस्तों, अगर आप में भी वो जोश और वो फायर है कुछ कर दिखाने का, और अगर आप भी सितारों की दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में नेम और फेम कमाना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें। Like, share, subscribe for more such informative videos.